Today we have launched a national level program called Ayushman Bhava, and Ayushman Bhava will be a campaign which will start in the district level tomorrow onwards, but the actual programs will start on 17th, and from 17th to 2nd October, that is for 15 days, that Pakwada should be known as Seva Pakwada. तो ये हमारे लिए नॉट ओनली हेल्थ डिपार्टमेंट बट ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल द पार्ट ऑफ सोसाइटल स्ट्रटा, जिसमें अलग अलग सिविल सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशंस है, पीएनआरडी मेंबर्स होते हैं, गांव पंचायत लेवल में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, यूथ क्लब्स, जितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है, अदर डिपार्टमेंट्स, पीएनआरडी डिपार्टमेंट्स, अदर लाइन डिपार्टमेंट्स, आंगनवाड़ी, WNCD डिपार्टमेंट, इन सबको साथ में आके इसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। और उसको ध्यान में रखते हुए 17 तारीख से लेके 2 तारीख तक हम लोग ये सेलिब्रेट करेंगे। Hailakandi district is considered to be an aspirational district, and in health and wellness parameters, in some parameters we are we were traditionally lagging behind, but now onwards, in last 4 to 5 years, we have introduced some major infrastructural arrangements. We have started with civil hospital, upgradation of civil hospital, then we upgraded it to the ICU, then added beds, then oxygen facilities, oxygen plant, etc. But that is a centralized nature. But in periphery also, we've added health and wellness centers. Now we have 66 functional delivery points along with 107 sub-centers. So periphery health and wellness infrastructure also we are adding. But the point is, in some areas, the problems are very different, and in some areas, the problems are very unique. For example, in tea garden areas, we have a habit of having salt tea along with illicit or sulai. So that leads to more number of anemic patient, particularly in pregnant lady. So that area, that identification of area is a major factor of this Pakwada. So in this Pakwada, we suppose that all these 4 columns, we are supposed to identify the gaps, where exactly we need to intervene and which department we will participate in this. So I request all the organization, be it Lions Club, Rotary Club, or any registered NGO, or any volunteer for that matter. If any volunteer she wants to join with the department or the club, it is more than welcome, because it's a जन भागीदारी, it's a people participation approach के साथ हम लोग इसमें काम करेंगे. The more important part is on 17th we will start with the Ayushman Bhava campaign. So Ayushman Bhava campaign में we are focusing on 3 major steps or 3 major initiatives. The first would be Ayushman आपके द्वार, जो आयुष्मान भव का तृतीय चरण के हिसाब से काम करेगा, और जो भी राशन कार्ड होल्डर्स है डिस्ट्रिक्ट में, वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए, जो है आयुष्मान भारत या PMJ जिसको हम बोलते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज है जिसमें बेनिफिशियरी एलिजिबल है लेकिन उसको कार्ड नहीं मिला है, इसीलिए बेनिफिशियरी खुद जाके रजिस्टर कर सकता है, लेकिन देखा गया है कि बेनिफिशियरी खुद रजिस्टर नहीं कर पाता है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द ब्लॉक्स, ऑल द हेल्थ ब्लॉक्स एंड द ऑफिशियल्स एट सब सेंटर लेवल टू गो हाउस टू हाउस। तो 17 तारीख से हम हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन करेंगे, जो भी एलिजिबल रहेंगे उसमें हम कार्ड क्रिएशन के लिए सहाय करेंगे, और हमारा टारगेट है सैचुरेशन। ये 15 दिन में जितने भी बचे हुए लोग हैं जिनको ये लाभ मिलना था लेकिन मिला नहीं है, उनको हमको आइडेंटिफाई करके प्रोसेस करके उनको उनके हाथ में कार्ड थमाना है। कार्ड मिलने के बाद एक अश्योरेंस मिल जाता है कि 5 लाख तक का उपचार वो किसी भी सरकारी अस्पताल में कर सकते हैं। तो जितना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ता है, आना जाना, ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंडिचर, दवाई का खर्चा, डॉक्टर कंसल्टेशन फीस हो गया प्राइवेट में, या फिर लैब फीस हो गया, उसको हम लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन या अंत्योदय अप्रोच में जो पुअर लोग हैं उनका हम टाल सकते हैं।
Second part of Ayushman Bhava, third could be the Ayushman मेला। तो 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक 4 हफ्ते हमारे पास है। चारों हफ्तों में एक दिन एक कैंप लगेगा, उसको हम आयुष्मान मेला बोलेंगे। आयुष्मान मेला में पर्टिकुलरली टीबी, क्योंकि टीबी एक नोटिफाइड डिसीज होता है और टीबी को आइडेंटिफाई करना, कुछ ट्रीटेबल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कुछ को हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उसको मैनेज करना पड़ता है।